There was a question in NET JRF paper that said, arrange in temporal sequence. Arrange in temporal sequence. 1, psychology department at Mysore University. Psychology department at Calcutta University. Psychology department at Madras University. Psychology department at Pune University. Indian Journal of Psychology. Options were A, BACED, yes, interesting work by Bose, very interesting work by Bose. This was the question. And we will always try to use elimination method to get to the answer. Elimination method has two parts. Number one, what we are sure of, we are sure that it is correct. We are sure that it is incorrect. So elimination method has two parts. We are sure what is correct and we are sure what is incorrect. Now, let us see this sequence. This is something that we need to know at least, that Calcutta University has the first department and the work started with Calcutta University. So number 2, B should be at first. B is here, B is here, B is here, A is here. This is wrong. D option is out. Now, 4 options, each option has 20%, 25% chance of being correct. If we take it to 3 options, now there is 33% chance of being correct. If we can take it to 2 options, 50% chance. And if we take it to 1 option, then 75 to 100% chance that it would be correct. MCQs
are all about the best answers. They are not just about the correct answer. They are about which out of the correct answers is the best answer for this question. We know D is not the option because at first should be Calcutta University. यहां पे नहीं है Calcutta. दूसरा, मान लो आपको साल याद नहीं है हर किसी के, पर कुछ चीजें याद है. जैसे ये याद है कि पहले दो आसपास थे, जो पहले दो डिपार्टमेंट थे, और बाकी के दो डिपार्टमेंट काफी दूर थे. और शुरू में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शुरू किया था, उन्होंने ही जर्नल बनाई थी, तो ये थोड़ा आसपास में ही होने चाहिए. ये आसपास में, ये पहला है, ये आसपास में होना चाहिए. तो सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा था? सेकंड डिपार्टमेंट अगर याद आ जाए कि मैसूर है तो काम और आसान हो सकता है. फारफेच्ड देखते हैं, फारफेच्ड बिल्कुल दूर दूर तक का देखते हैं. मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये दोनों नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, एक ही व्यक्ति ने जर्नल पब्लिश करी थी, उसी ने डिपार्टमेंट शुरू किया था. नाउ दीज मस्ट बी नियर बाय. मुझे बस इतना याद आ रहा है, बाकी आई एम वेरी कंफ्यूज. मैसूर यूनिवर्सिटी, मद्रास और पुणे, विच यूनिवर्सिटी was established as second? So remember only these two things I remember. So 2 either should directly follow 5 or 2 should somewhere follow 5. 2 means B, 5 means E. Let's check which options have such sequences. B, E, direct sequence. None of them have. Okay, fine. B dash E. Okay, this has B dash E. This E is too far. This E is too far away. If they are both by Narendra Sen Gupta, they cannot be too far away. But E is too far away. B is first, E is last. Then, based on this guess, I can safely try to remove this. This is called educated guess. I don't know the right one. It might be the correct answer. But based on the logic that I am trying to form, this seems to be an out question, a deviant question. So I try to eliminate it. Now I have two options. Two options means 50% chance of making the correct answer. Head and tail वाला केस, heads आएगा या tails. अब I don't recall anything else, but I recall कि ये दोनों पास में होने चाहिए. और देखो, यहां पे E is at 4th number, यहां पे E is at 3rd number. Even using this logic, if I mark B, and if this has to be a guess, then I would take B as my guess in comparison to other guesses. Now, let's improve our elimination by using more data. Now, I also recall that this is the second psychology department and this is the first psychology department. So that means 2 should either directly follow 1 or 2 should have a gap. भाई ये तो डिपार्टमेंट ही हो गए, तो ये अगर सेकंड याद आ गया मुझे, सो दैट मीन्स ये थर्ड होगा या फोर्थ होगा. तो यानी कि 3, 4, 1 के बाद आएगा. 3, 4, 1 के बाद आएगा. और ये नरेंद्र नाथ गुप्ता के आसपास है, तो या तो 3, 2 के जस्ट बाद आएगा या फिर 2 और 1 के बीच में आएगा. अगर इस बेसिस पे भी मैं देखूं, 2 मतलब B, 1 मतलब A,
और मान लो ये पांचवा है, मान लो मैं गैस ले रहा हूं, ये यहां आ जाता है ई, या ई यहां आ जाएगा। अब मुझे देखना है दोनों सेटिंग कहां हो रही है। बी ए, ये बन रहा है बी ए, बी ए, बी सी तो हमारी सेटिंग में नहीं है, सी कट गया अपने आप इस लॉजिक से भी। दो ऑप्शन बचे, बी ए बी ए बी ए बी ई, ये सेटिंग ठीक सी बन रही है। तो अब मुझे इन दोनों में छांटना है। I hope that I'm trying to communicate what I'm trying to say. I'm just thinking out loud with the question. So I have two options and I have to take an educated guess between the two. If I know कि भाई ये डिपार्टमेंट बाद में आया, फिर 1943 के आसपास ये आया, फिर लास्ट में ये आया, तो ये सबसे लास्ट है। अगर ये भी याद आ जाए तो काम बन जाएगा, डी लास्ट है। पर दोनों में डी लास्ट है, बी है, तो यानी कि ए बी सीक्वेंस होगा। तो मुझे सीक्वेंस मिल रही है बी ए डी। नाउ आई नो बी ए डी। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नरेंद्र नाथ का है, तो कहीं बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे ये भी याद आ जाए कि ये 1924 का है, ये 1926 का है, then it will be easier for me to answer this. If I know all these, it is an easy question. If I don't know these, it is a moderate question. So if I know everything, I can make the correct answer. But even if I don't, then I can play with what I remember. So this is what we need to learn, refine during our practice. What do we need to refine? The elimination method approach. By playing like this, the way I played. This way, when you do it many times, it will help you to refine your approach. जब यही चीज आप बार बार करेंगे, तो ये आपकी अप्रोच को, एलिमिनेशन की अप्रोच को मजबूत करेगा। जो पता है उसको मार्क करो और बाकियों को एलिमिनेट करो। जो नहीं पता, जो पता है कि ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको यूज करो बाकियों को एलिमिनेट करने के लिए। बट even if it is a easy question, even if it is a medium question, even if it is a challenging question, try to eliminate options first. It will automatically take you to a right answer. But if you trust your facts and you directly go for the right answer, it might be wrong. तो अगर आप सीधे सही आंसर देख के मार्क कर दोगे, देयर इज अ हाई चांस कि वो गलत हो सकता है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड से एक एक ऑप्शन को हटाओ, और ये लंबा काम है। इट टेक्स एफर्ट, टाइम। देयरफॉर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तब इसको ज्यादा बार इंप्रूव करो, सो दैट दिस बिकम्स इजियर एंड क्विकर फॉर यू। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Let's take another question. Who coined the term psychophysics? Do you all remember? जब हमने ब्रिटिश फिलोसोफर्स की बात करी थी, तो हमने साइकोफिजिक्स की बात करी थी। क्या आप चैट में बताना चाहेंगे? Who do you think, do you recall who coined the term psychophysics? Yes, दीप्ति, बिल्कुल। Gustav Fechner. There is a confusion. Many a times there is a confusion between Weber and Fechner. It is Fechner. So when you know things, question becomes easier. Now, let's take one more question.
Do you all recall what is innatism? Try to recall innatism. And I'll ask the question. Name the philosopher who believed that some knowledge was inborn in humans. ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, प्लेटो, डेकार्टे, फोर्थ जोसेफ गैल. ऑप्शंस हैं ए बी सी ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 1 2 3, सी 4 या डी ऑल. Do you recall what is innatism? It means not zero. That we are not born blank. We are born with some knowledge. So, who was against this approach? Innatism के against कौन था? Against. जिसने कहा innatism नहीं होता. Who was against? ऑप्शन में याद करें सब. Write it in the chat box. Who was against? Yes, Prakrutika. It is John Locke. Now we know that John Locke will not be the answer. John Locke means one, will not be the answer. So everything that has one is wrong. A has one, cancel it. B has one, cancel it. Just a minute. ऐसे तो सारे ही गलत हो जाएंगे. It is 2, 3. So it has one. John Locke, wrong. D, all. It has one, wrong. So now we have two options, A and C left. So we now have a 50 chance of marking the option correct. Now, I remember Descartes supported innatism. 3 supported. 3 is here. 3 is nowhere else. The answer is A. Because this is where 3 is there. And we already eliminated 2 options. So A should be the answer. But if I correctly recall everything, then I remember Descartes and everyone before him supported innatism. Why? How do I know that? Because John Locke was the first person to reject innatism. So everybody before that accepted innatism. So Socrates, Plato, Aristotle, Hippocrates, everybody supported innatism. So Plato, Descartes. Option A.
There was another question. Okay, let's take an assertive reasoning question. There is an assertion Tolman's purposive behavior was considered as a major advancement in psychology. और इसका रीजन इन्होंने दिया, प्री टॉलमैन behaviorism excessively emphasized SR relationship and ignored cognitive processes. Options A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct and R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. So let's see your answers first. Assertion: Tolman's purposive behavior was considered as a major advancement in psychology. So let's see your answers. Deepti says C. Everybody answer, no matter whatever you feel the right answer is. Write your answers. Piyush, Prakritika. Others also do write your answers. Whatever you think is the answer, write it here. ओके, अब देखिए टॉलमैन पर्पसिव बिहेवियर, पहली बात है ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का।
एसर्शन मतलब कोई कही गई बात, स्टेटमेंट। मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने एक स्टेटमेंट कही, एसर्शन। मैंने एसर्ट किया, कोई बात कही, एक स्टेटमेंट बोली। रीजनिंग, इसका कारण क्या हो सकता है? तो रीजनिंग, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा पीएचडी का रिजल्ट आया है, मान लो। ये मैं कह रहा हूं रीजनिंग। तो क्या ये सही बात है? मेरे से पूछोगे तो हाँ, सही बात है, यही कारण है मेरी खुशी का। तो एसर्शन, स्टेटमेंट, रीजन, क्या कारण हो सकता है पहली बात का? तो क्या दूसरी बात सही रीजन है, सही कारण है पहली बात का? देखते हैं। इन्होंने एक बात कही, क्या? टॉलमेंस पर्पसिव बिहेवियर एक मेजर एडवांसमेंट मानी गई साइकोलॉजी में। अब याद करो पीछे का। टॉलमन ने क्या कहा था? बिहेवियरिज्म कहता है एस आर। टॉलमन ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो? याद करिए थोड़ा सा। टॉलमन ने क्या कहा था, याद करिए थोड़ा सा। टॉलमन ने कहा था कि एस और आर के बीच में कुछ होता है, जिसको हमने कहा था ब्लैक बॉक्स, जिसको हमने कहा था मीडिएशन, अगर आपको याद हो, या फिर मीडिएशनल प्रोसेस। मीडिएशनल मतलब बीच का, बिचौलिया। यानी कि एस आर आपस में नहीं घटते, बीच में भी कुछ हो रहा है। तो इन्होंने कहा, टॉलमैन ने कहा पर्पस, यहां पे पर्पस, गोल। अगर पर्पस है हमारे पास, गोल है हमारे पास, तो ही रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि हमारे दिमाग में कॉग्निटिव मैप्स बन जाते हैं, और वो मैप्स तभी हमें पता चलता है उस लर्निंग का, लेटेंट लर्निंग का, जब कोई पर्पस, गोल सामने आता है। तो अगर मुझे कहीं जाना है, तो अगर रोज मुझे कोई छोड़ने वाला है, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने रूट याद कर लिया या नहीं। पर एक दिन कोई साथ जाने वाला नहीं था, मुझे अपने आप जाना पड़ा, और तब मुझे पता चला, अरे मुझे तो रास्ता आता है, मुझे तो रास्ता पता था। लेटेंट लर्निंग। तो यानी कि इन्होंने कहा, पहली बार इन्होंने इस विचारधारा से हटके कहा कि एस और आर के अलावा बीच में भी कुछ होता है, जो माइंड में घटता है, जो कॉग्निशन में घटता है। और ये उस समय पे बड़ी बात मानी गई। क्यों? क्योंकि उससे पहले एवरीबडी वॉज सेइंग बिहेवियरिज्म इज एस आर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सब में स्टिमुलस रिस्पॉन्स। घंटी बजाई, स्टिमुलस, और मुंह में राल आ गया, रिस्पॉन्स। अच्छा काम किया, रिवॉर्ड दिया, दोबारा अच्छा काम करेगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। दिमाग में क्या घट रहा है किसी को नहीं पता, किसी को परवाह नहीं। टॉलमन ने पहली बार कहा कि इस घंटी और राल के बीच में दिमाग में भी कुछ घट रहा है, कुछ लर्निंग हो चुकी है हमारी, जो सामने तब तक नहीं आती जब तक पर्पस, गोल सामने ना हो। तो इन्होंने पहली बार कॉग्निशन कहा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कि पहला इज करेक्ट। पहली बार बिहेवियरिज्म में कॉग्निटिव की बात करी गई, तो एक बड़ी बात थी उस टाइम पे। प्री टॉलमैन, प्री टॉलमैन मतलब, प्री मतलब पहले, टॉलमैन से पहले। ये टर्म्स नहीं होती है, कहीं पे भी लगा देते हैं प्री पोस्ट, मतलब उससे पहले या उससे बाद। तो टॉलमैन से पहले का जो बिहेवियरिज्म है, वो एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा फोकस करता था एस आर रिलेशनशिप पे। तो क्या ये सही बात थी? क्या टॉलमैन से पहले हर कोई एस आर ही कर रहा था? यस, सब एस आर बोल रहे थे। इवान पावलो ने भी एस आर कहा,
जॉन वॉटसन ने भी एसआर कहा, बीएफ स्किनर ने भी एसआर कहा, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। और सबने कॉग्निटिव को इग्नोर करा कि ये बीच का छोड़ो, ये नहीं पढ़ते बिहेवियर में, बस यही पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा के देखो, या फिर एज लगा के देखो, या फिर इफ देन सिंस देयरफॉर, ऐसी स्टेटमेंट लगा के इनको जोड़ के देखो। टॉलमेंस, सबसे पहले मैं बिहेवियरिज्म और एज लगाना पसंद करता हूं अपने आप ही। टॉलमेंस पर्पसिव बिहेवियर was considered as a major advancement in psychology because pre-Tolman behaviorism excessively emphasized SR relationship and ignored cognitive processes. क्या लग रहा है आपको सुन के? पर्पसिव बिहेवियरिज्म क्या है? नॉट SR, यानी कि S पर्पस R। तो पहली बात भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, और इसलिए बड़ी बात मानी गई थी क्योंकि उससे पहले सिर्फ एसआर ही बोला जा रहा था, और पहली बार किसी ने कॉग्निशन की बात करी। सो इट इज कंसिडर्ड अ मेजर एडवांसमेंट इन साइकोलॉजी बिकॉज प्री टॉलमेंट बिहेवियरिज्म एक्सेसिवली एम्फेसाइज्ड एसआर रिलेशनशिप। एक्सेसिवली मतलब हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। हर कोई बस स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, किसी को परवाही नहीं दिमाग में क्या हो रहा है। टॉलमैन ने पहली बार कहा कि परवाह करनी चाहिए। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ आ रहा है थोड़ा सा ये? एसर्टिव रीजनिंग के सवाल ऐसे फॉर्म किए जाते हैं। अब जब आपने ये पहला देख लिया, तो अब जब एसर्टिव रीजनिंग के सवाल करो तो फोकस ऑन कि दो स्टेटमेंट को जोड़ के देखना, कैसे भी जोड़ो। ये तभी पता होगा जब आपको टॉलमैन के पर्पसिव बिहेवियर का पता होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट जेआरएफ का। ये डिफिकल्ट हर उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा जिसको पर्पसिव बिहेवियर नहीं पता, पहला। डिफिकल्ट हर उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा जो इनको जोड़ना नहीं जानता। वो बार बार दो अलग स्टेटमेंट देखते हैं और दो अलग स्टेटमेंट को बार बार पढ़ते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद आंसर मिल जाए। पर हमें यह जानना है कि क्या यह सही रीजन है इस बात का। ये क्लियर हुआ सबको? सो आज के लिए इतना ही। कल हम और इस टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली लेट मी नो। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।